آج کی ایپیسوڈ ہے میراث کی دلہن۔ وہ شخص ارحم خانزادہ تھا۔ 5 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ پورے خانزادہ خاندان میں اس کی واپسی کی خبر صبح سے پھیل چکی تھی۔ حویلی کے ملازم دروازوں کی صفائی میں لگے تھے، باورچی خانے میں کھانے تیار ہو رہے تھے، عورتیں نئے کپڑے پہن کر اس کے استقبال کی تیاری کر رہی تھیں، مگر حویلی کے پچھلے حصے میں ایک لڑکی خاموش بیٹھی اپنی کتاب بند کر رہی تھی۔ اس کا نام ایمان تھا۔ وہ ارحم کی چچا زاد تھی۔ بچپن میں دونوں نے ایک دوسرے کو صرف چند بار دیکھا تھا، پھر ارحم لندن چلا گیا اور ایمان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی نام اس کی قسمت کا فیصلہ بن جائے گا۔ دروازے کے باہر گاڑی آ کر رکی۔ پورا خاندان باہر نکل آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں ایک لمبا قد آدمی آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ غرور، صرف خاموشی تھی۔ دادا جان آگے بڑھے اور برسوں بعد اپنے پوتے کو گلے لگا لیا۔ ارحم نے ادب سے ان کے ہاتھ چومے، پھر ایک کر کے سب سے ملا، لیکن اس کی نظریں کسی کو تلاش نہیں کر رہی تھیں۔ ایمان کھڑکی کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، یہ وہی ارحم تھا جس کے بارے میں خاندان کی ہر لڑکی باتیں کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اسے متاثر کرتی۔ اس نے پردہ واپس گرا دیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام ہوتے ہی دادا جان نے پورے خاندان کو دیوان خانے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ارحم بھی خاموشی سے دادا جان کے برابر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دادا جان نے گہری سانس لی اور بولے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اپنی زندگی میں اپنے خاندان کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آج سے 1 ہفتے بعد ارحم خانزادہ کا نکاح اپنی چچا زاد ایمان کے ساتھ ہوگا۔ جو سنتے ہی پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ایمان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کی طرف دیکھا، پھر ارحم کی طرف، اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ انکار کر دے، شاید وہ کہے کہ یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، مگر ارحم نے صرف ایک بار دادا جان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ یہ الفاظ ایمان کے دل پر کسی بوجھ کی طرح گرے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا، کبھی کبھی ایک انسان کی خاموشی رضامندی بھی دوسرے انسان کا دل توڑ دیتی ہے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکی اور خاموشی سے دیوان خانے سے باہر چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی نکاح ایک دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بنے گا۔ ایمان تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی سب سے اچھی دوست اور کزن دعا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ دعا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمان، یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنسو چھپا لیے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اس کی رائے تک نہیں لیتے اور نہ ہی پوچھی جاتی ہے۔ میں بھی شاید انہی فیصلوں میں سے ایک ہوں۔ دعا نے بے بسی سے اسے دیکھا، مگر ارحم بھائی برے تو نہیں ہیں؟ ایمان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ضروری یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا تمہیں اپنی مرضی سے قبول کرے، مجبوری سے نہیں۔ ادھر دیوان خانے میں سب لوگ جا چکے تھے، صرف دادا جان اور ارحم رہ گئے تھے۔ دادا جان نے گہری نظر سے اپنے پوتے کو دیکھا، تم نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہی فیصلہ کیوں کیا؟ ارحم نے سکون سے جواب دیا، آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہتر سوچا ہے، اس لیے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دادا جان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، تم آج بھی ویسے ہی ہو، خاموش، بردبار اور اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشی سوچنے والے۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف چائے کا کپ اٹھایا، مگر اس کے ذہن میں ایک منظر بار بار آ رہا تھا، وہ لمحہ جب ایمان کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دینے والا خوف پہلی بار اسے محسوس ہوا۔ شاید یہ فیصلہ صرف اس کے لیے آسان تھا، ایمان کے لیے نہیں۔ رات کافی گزر چکی تھی، حویلی کے زیادہ تر کمرے بند ہو چکے تھے۔ ارحم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بالکونی میں آ گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسی وقت سامنے والے باغ میں سے ایک لڑکی نظر آئی، سفید دوپٹے میں مربوط، ہاتھ میں کتاب لیے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ایمان تھی۔ ارحم کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا، یہ لڑکی دوسروں سے مختلف ہے، وہ شور میں رہ کر بھی خاموش رہنا جانتی ہے۔ اسی لمحے ایمان نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملی، صرف چند لمحوں کے لیے، پھر ایمان نے فوراً نظریں جھکا لی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ارحم وہیں کھڑا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن پہلی بار اسے محسوس ہوا
یہ شادی شاید اتنی آسان نہیں ہوگی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی پوری حویلی میں ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ ارحم ہمیشہ کی طرح بہت جلدی اٹھ گیا۔ 5 سال لندن میں رہنے کے باوجود اس کی عادتیں نہیں بدلی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سیدھا باغ کی طرف چلا گیا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے آوازیں نکال رہے تھے۔ اسی باغ کے کونے میں ایمان گھاس پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ارحم چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ قدموں کی آواز سن کر ایمان نے سر اٹھایا۔ ارحم کو سامنے دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ دونوں کو کے درمیان چند لمحے خاموشی رہی۔ آخرکار ارحم نے خاموشی توڑ دی۔ تمہیں کتابیں بہت پسند ہیں؟ ایمان نے مختصر سا جواب دیا۔ جی۔ پھر خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ ارحم نے پہلی بار محسوس کیا وہ کاروباری میٹنگز میں گھنٹوں بات کر سکتا ہے، مگر اس لڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ایمان نے خود ہی کہا، آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ ارحم نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اگر اس شادی سے تم خوش نہیں ہو تو میں دادا جان سے بات کر سکتا ہوں۔ ایمان نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں حکم نہیں تھا، صرف سنجیدگی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اب فیصلہ ہے؟ اب بات کرنے سے کیا بدلے گا؟ ارحم نے جواب دیا، کبھی کبھی ایک فیصلہ بھی بدل سکتا ہے اگر کسی کی خوشی اس سے جڑی ہو۔ ایمان نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں کسی ایسے رشتے میں نہیں آنا چاہتی جہاں فرض ہو۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اپنی مرضی سے قبول کرے، صرف خاندان کی خوشی کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر ارحم کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایمان صرف نرم مزاج لڑکی نہیں بلکہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرنے والی انسان بھی ہے۔ اسی لمحے حویلی کی طرف سے دعا کی آواز آئی، ایمان دادا جان سب کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ایمان نے آہستہ سے سر ہلایا اور جانے لگی۔ چند قدموں چلنے کے بعد وہ اچانک رکی، بغیر پیچھے دیکھیے اس نے صرف ایک جملہ کہا، امید ہے ایک دن آپ بھی اپنی مرضی سے بھی کوئی فیصلہ کریں گے، صرف دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ارحم وہی کے وہی کھڑے رہ گئے۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سے سوال پیدا ہوا، کیا واقعی وہ ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں پر چلتا آیا تھا، یا اس نے کبھی اپنی خواہشوں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی؟ اور یہی سوال آنے والے دنوں میں اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر پورا خانزادہ خاندان موجود تھا۔ ہر طرف ہلکی ہلکی باتیں ہو رہی تھی، مگر ارحم اور ایمان دونوں خاموش تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، مگر کسی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ دادا جان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کل شہر کے بڑے لوگوں کے اعزاز میں ایک دعوت رکھی گئی ہے، ارحم تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ ارحم نے سر ہلایا، جی دادا جان۔ پھر دادا جان نے ایمان کی طرف دیکھا، اور تم بھی تیار رہنا، اب لوگ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیں گے۔ ایمان کے لیے نوالا نگلنا مشکل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی زندگی آہستہ آہستہ سب کی نظروں کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری کھول کر اس نے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ ہر جوڑا اسے ایسے ہی جیسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی خود کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اسے ایک ہونے والی دلہن کی طرح دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، دعا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چند ڈریس تھے، خالہ جان نے بھیجے ہیں کل کی دعوت کے لیے۔ ایمان نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولی، دعا کیا ہر لڑکی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کی مرضی سے زیادہ دوسروں کی پسند اہم ہو جاتی ہے؟ دعا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر ارحم اپنے کمرے میں کھڑا سوٹ کیس کھول رہا تھا۔ 5 سال کی زندگی ایک چھوٹے سے بیگ میں بند تھی، چند فائلیں، کچھ کپڑے اور ایک پرانی تصویر۔ اس نے تصویر ہاتھ میں لی، وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے تصویر کو دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ ہوتی تو شاید مجھے بتاتی کہ صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، اس کا چھوٹا کزن حمزہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ارحم بھائی، سب آپ کو نیچے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارحم نے تصویر دوبارہ دراز میں رکھ دی اور حمزہ کے ساتھ نیچے آ گیا۔ شام ڈھل رہی تھی، حویلی کے باغ میں سب چائے پی رہے تھے۔ ایمان بھی وہیں موجود تھی۔ حمزہ نے اچانک گیند زور سے اچھالی، گیند سیدھی ایمان کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ گیند اس کے چہرے پر لگتی، ہم نے ہاتھ فوراً بڑھا کر گیند پکڑ لی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں بہت قریب کھڑے تھے۔ ایمان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ غرور تھا
न बेरही, सिर्फ एक अजीब सी संजीदगी थी। अरहम खामोशी से गेंद हमजा को वापस दे दी और सिर्फ इतना कहा था, एहतियात करो, किया करो हमजा। हमजा ने शर्मिंदा होकर माफी मांग ली। ईमान ने भी आहिस्ता से शुक्रिया कहा। ये इन दोनों के दरमियान पहले अल्फाज थे जो किसी मजबूरी के बगैर अदा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन होने वाली एक मामूली सी दावत इन दोनों के रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। अगली सुबह पूरी हवेली में गैर मामूली मसरूफियात थी। मुलाजिम एक कमरे से दूसरे कमरे तक भाग रहे थे। मेहमानों के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही थी। आज रात खानजादा खानदान की सालाना दावत थी जिसमें शहर के बड़े कारोबारी खानदान शरीक होने वाले थे। ईमान अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। इसने हल्के आसमानी रंग का जोड़ा पहना हुआ था। चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप था। वो हमेशा सादगी पसंद करती थी। दुआनी से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज भी अरहम भाई ने तुम्हें देखकर नजर ना उठाई तो फिर वाकई वो मुश्किल इंसान है। ईमान ने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं वहां किसी को मुतासिर करने नहीं जा रही, बस खानदान की इज्जत के लिए जा रही हूँ। दुआ ने हंसते हुए कहा, ये बात अपने दिल को समझाना मुझे नहीं। इधर अरहम नीचे मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ था। हर आने वाला इससे हाथ मिला रहा था। कोई इसकी कामयाबी की तारीफ कर रहा था, कोई लंदन के कारोबार के बारे में पूछ रहा था, मगर अरहम हर सवाल का जवाब मुख्तसरन दे रहा था और आगे बढ़ जाता था। इसे ऐसे महफिलें कभी पसंद नहीं थी। इसी दौरान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ईमान पर सबकी नजरें ठहर गईं। सादगी के बावजूद इसकी शख्सियत में एक अलग ही वक़ार था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई नीचे आई। दादा जान ने खुश होकर इसे अपने पास बुला लिया। ये हमारी होने वाली बहू है, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। हर तरफ मुबारकबाद की आवाजें आने लगी। ईमान के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसी लम्हे एक नौजवान इनके करीब आया, महंगा सूट पहने हुए, चेहरे पर खुद एतमादी से बड़ी मुस्कुराहट। वो सीधा ईमान के सामने आकर रुक गया। शताब से पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा नाम फहद है। ईमान ने अदब से सलाम किया। फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पहले मालूम होता कि खानजादा खानदान में इतनी खूबसूरत लड़की भी है तो मैं ये दावत कभी ना छोड़ता। ये जुमला सुनते ही अरहम की नजरें पहली बार इन दोनों की तरफ उठी। वो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। फहद मुसलसल ईमान से बातें किए जा रहा था और ईमान सिर्फ रस्मी अंदाज में जवाब दे रही थी। दादा जान को किसी मेहमानों ने बातों में मसरूफ कर लिया। दुआ भी दूसरी तरफ चली गई। चंद लम्हों के लिए ईमान अकेली रह गई। फहद एक कदम और करीब आया। आपको शोर पसंद नहीं तो हम बाहर की तरफ चल सकते हैं, वहां सुकून भी होगा। ईमान ने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं शुक्रिया, मैं यही ठीक हूँ। फहद अभी कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखकर इसने पलट कर देखा। सामने अरहम खड़ा था। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी थी, मगर इसकी आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। फहद साहब, दादा जान आपको ढूंढ रहे हैं। फहद ने हैरत से पूछा। वाकई? अरहम ने मुख्तसर जवाब दिया। जी। फहद फौरन उठा और वहां से चला गया। ईमान ने चंद लम्हे अरहम को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, शुक्रिया। अरहम ने पहली बार इसकी तरफ देखकर कहा, आप इस घर की इज्जत है, आपको किसी भी ऐसी सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दावत खत्म होने के बाद हवेली आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगी। मेहमान एक एक करके चले गए। ईमान अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मगर इसके जहन में बार बार एक ही मंजर आ रहा था। जब अरहम खामोशी से इसके पास आकर खड़ा हो गया था, इसने न गुस्सा किया न ऊंची आवाज में बात की, सिर्फ एक जुमला कहा और फहद खुद ही वहां से चला गया। ईमान ने पहली बार महसूस किया, खामोश इंसान की मौजूदगी भी बाज़ औक़ात बहुत मजबूत होती है। इधर अरहम अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा रात के अंधेरे को देख रहा था। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो फहद के पास क्यों गया था। वो चाहता तो किसी मुलाजिम को भी भेज सकता था, मगर इसने खुद जाना मुनासिब समझा। इसने सर झटका और खुद से कहा कि सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगली सुबह नाश्ते के बाद दादा जान ने अरहम को अपने कमरे में बुलाया। मैं चाहता हूँ आज तुम ईमान को शहर ले जाओ, न काम में ज्यादा दिन नहीं रहे, जो भी जरूरी खरीदारियां मुकम्मल कर लो। और हमने मुतसिर से जवाब दिया, जी दादा जान। जब ये बात ईमान को बताई गई तो वो चंद लम्हे खामोश रही। इसने कभी किसी गैर महरम के साथ अकेले वक्त नहीं गुजारा।
अगरचे चंद दिनों बाद वो इसका शोहर बनने वाला था, फिर भी दिल अजीब सा घबरा रहा था इसका। 1 घंटे बाद दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। पूरे रास्ते खामोशी रही, सिर्फ गाड़ी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। यार, ईमान ने खामोशी तोड़ दिया। आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं। और हमने सड़क पर नजरें रखते हुए जवाब दिया, ज्यादा बोलने की आदत नहीं। ईमान हल्का सा मुस्कुराई, फिर तो आपके साथ जिंदगी गुजरने वालों का काफी सब्र करना पड़ेगा। ये सुनकर पहली बार अरहम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, इतनी हल्की कि अगर कोई गौर न करता तो शायद देख भी न पाता। ईमान ने वो मुस्कुराहट देख ली और न जाने क्यों इसका दिल एक लम्हे के लिए मुतमईन सा हो गया। चंद ही देर बाद गाड़ी एक बड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रुक गई। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, कई लोगों की नजरें इन पर रुक गई। एक लंबा खामोश नौजवान और इसके साथ वहाँ एक बावकार लड़की। वो मुख्तलिफ दुकानों पर जाते रहे और हम हर चीज में सिर्फ एक सवाल करते, तुम्हें ये पसंद है? अगर ईमान हाँ कहती तो वो फौरन खरीद लेता। अगर वो नफी में सहलाती, वो बगैर किसी बहस के आगे बढ़ जाता। ये ना अपनी पसंद मुसलत करता, ना फैसला बदलने की कोशिश करता। ये बात ईमान को हैरान कर रही थी। फासले पर शाम हो चुकी थी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। सड़क किनारे एक छोटी सी बच्ची फूल बेच रही थी। वो खिड़की के करीब आई। साहिब, एक गुलदस्ता ले लें। और हमने जेब से पैसे निकाले, मगर फूल लेने की बजाय इसने पूरा गुलदस्ता खरीद लिया। फिर वो गुलदस्ता खामोशी से ईमान की तरफ बढ़ा दिया। ईमान हैरत से इसे देखने लगी। आपने ये मेरे लिए लिया? और हमने मुझसे सा जवाब दिया, नहीं। वो बच्ची काफी देर से धूप में खड़ी थी, मुझे लगा इसे जल्दी घर जाना है चाहिए। ईमान ने बेचारा मुस्कुरा दिया और पहली बार इसके दिल में ये ख्याल आया, शायद हम अपनी बातों से नहीं, अपने अमल से मोहब्बत जाहिर करने वाला इंसान है। शाम के वक्त गाड़ी हवेली के दरवाजे के सामने आकर रुकी। मुलाजिम सामान अंदर ले जाने लगे। ईमान अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए अंदर जाने लगी थी। तभी इसका पाँव सीढ़ी के किनारे से फिसल गया। वो संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि अरहम ने फौरन इसका बाजू थाम लिया। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ईमान ने घबराकर अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ा लिया। शुक्रिया। और हमने सिर्फ इतना कहा, एहतियात किया करो। ये पहला मौका था जब इसकी आवाज में सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हल्की सी फिक्र भी महसूस हुई। रात के खाने पर पूरा खानदान दोबारा एक साथ बैठा। खाला ज़ेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निकाह में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हम और ईमान को दूसरे को समझने का भी मौका मिल जाना चाहिए। सब हंसने लगे। ईमान ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और हम खामोशी से पानी पीता रहा। खाने के बाद दुआ ईमान को अपने कमरे में ले गई। इसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है अरहम भाई इतने भी सख्त नहीं जितने तुम समझती थी। ईमान ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, वो बुरे नहीं है, बस इन्हें अपने दिल की बात कहना नहीं आती। इधर अरहम लाइब्रेरी में बैठा एक फाइल देख रहा था। हमजा दौड़ता हुआ अंदर आया। अरहम भाई, एक बात पूछूं, आप ईमान बाजी से मोहब्बत करते हैं? अरहम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, बोला, मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं होती हमजा, इसे वक्त देना पड़ता है। हमजा मासूमी से बोला, फिर आप वक्त दीजिएगा ना, क्योंकि ईमान बाजी बहुत अच्छी है। ये कहकर वो भाग गया और हम काफी देर तक खामोश बैठा रहा। इसे पहली बार महसूस हुआ शायद इस नन्हे बच्चे ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब अभी इसके पास भी नहीं था। और इसी वक्त ऊपर अपनी खिड़की से ईमान ने बाग की तरफ देखा और हम तन्हा आसमान की तरफ देख रहा था। ईमान के दिल में बेहतियाती ख्याल आया, शायद इस खामोश इंसान को भी किसी अपने की जरूरत है। सुबह की नरम धूप पूरे बाग में फैल चुकी थी। हवेली में निकाह की तैयारियां पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। हर तरफ कपड़ों की सिलाई, जेवरात की बातें और मेहमानों की फहरिस्तें बन रही थी। मगर ईमान इन सबसे दूर लाइब्रेरी में बैठे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह एक ही सफ़े कई बार पढ़ चुकी थी, लेकिन जहन किसी लफ्ज पर ठहर नहीं रहा था। इस वक्त दरवाजा आहिस्ता से खुला और हम अंदर आए। इसने एक लम्हे के लिए ईमान को देखा, फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अरहम ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं यहाँ बैठूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? ईमान ने किताब बंद कर दी। लाइब्रेरी सिर्फ मेरी नहीं है, जब आप चाहे आ सकते हैं। और हमने पहली बार हल्का सा सर हिलाया, फिर दोनों खामोशी से अपनी अपनी किताब खोलकर बैठ गए। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। ना अरहम ने कोई बात की, ना ईमान ने। मगर जब ईमान इस खामोशी में भी घुटन नहीं थी। ईमान ने दिल ही दिल में सोचा, शायद कुछ लोग ज्यादा बातें किए बगैर भी सुकून ले लेते हैं। इस दौरान हमजा दौड़ता हुआ अंदर आया और हम
भाई जल्दी चलिए, दादा जान सबको बुला रहे हैं। ये दोनों नीचे दीवान खाने में पहुंचे। दादा जान ने खुशी से सबकी तरफ देखा। कल निकाह से पहले खानदान की रिवायत के मुताबिक सब लोग एक साथ फार्म हाउस जाएंगे, पूरा दिन वही गुजारेंगे। सब ने खुशी से हामी भर ली। हमजा तो खुशी से उछलने लगा, मगर ईमान खामोश रही। इसने कभी खानदान के साथ इस तरह बाइट वक्त नहीं गुजारा था। शाम को दुआ इसके कमरे में आई थी। इसने हंसते हुए कहा, कल देखना हमजा जरूर कुछ शायद करेगा और वो पानी में गिर गए तो और हम भाई बचाएंगे। ईमान बेहतर हंस पड़ी। शायद कई दिनों बाद पहली बार था जब इसके चेहरे पर दिल से मुस्कुराहट आई थी। खिड़की के बाहर से गुजरते हुए अरहम की नजर इत्तेफाक से इसकी मुस्कुराहट पर पड़ी। वो चंद लम्हे वहीं का रुक गया, फिर खामोशी से आगे बढ़ गया। लेकिन न जाने क्यों इसके जहन में पहली बार यही ख्याल आया, मुस्कुराहट ईमान पर बहुत अच्छी लगती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही फार्म हाउस हवेली जाग चुकी थी। सब लोग फार्म हाउस जाने की तैयारी कर रहे थे। हम सबसे ज्यादा खुश था। वो हर 5 मिनट बाद किसी न किसी से पूछ रहा था कि कब चलना है। कर सब गाड़ियों में बैठ गए और हमने कार स्टार्ट की। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमान तुम और हम के साथ बैठ जाओ। ईमान ने खामोशी से सर हिलाया और आगे वाली सीट पर बैठ के पूरा रास्ता हमेशा की तरह खामोशी से गुजरा। मगर आज की खामोशी पहले से अजनबी नहीं थी। रास्ते में अचानक हल्की सी बारिश शुरू हो गई। खेतों पर गिरती बारिश देखकर ईमान बेहतर मुस्कुराई। हमने लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है? ईमान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा बारिश में हर चीज नई लगने लगती है, दरख्त भी, रास्ते भी और शायद इंसान भी। और हमने पहली बार इसकी बात गौर से सुनी। फिर हमेशा कहा, लंदन में भी बारिश बहुत होती है, लेकिन वहाँ किसी के पास रुककर से देखने का वक्त नहीं होता। ये ईमान ने पहली बार महसूस किया, इस खामोश इंसान के अंदर भी कहीं न कहीं तन्हाई छुपी हुई है। चंद ही देर बाद फार्म हाउस पहुंच गए। चारों तरफ सरसब्ज मैदान थे, दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत झील थी। बच्चे दौड़ते हुए इधर उधर खेलने लगे थे। औरतें एक तरफ बैठ गई, मर्द दादा जान के साथ फार्म की जायजा लेने लगे। ईमान अकेली झील के किनारे जा बैठी। वो पानी में बनती लहरों को खामोशी से देख रही थी। अचानक इसके बराबर में कोई आकर खड़ा हुआ। इसने पलट कर देखा, राहुल था। इसके हाथ में 2 कप थे। इसने कप ईमान की तरफ बढ़ाया। चाय? ईमान ने हैरत से कप ले लिया। आपको कैसे पता कि मुझे चाय पसंद है? हमने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इसी लाइब्रेरी में तुम्हारी किताब के साथ भी यही खुशबू आ रही थी। शायद तुम चाय पीकर आई थी। ईमान चंद लम्हों तक इसे देखती रही। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खामोश इंसान इतनी छोटी छोटी बातें भी महसूस करता है। इसी वक्त दूर से दुआ की आवाज आई, ईमान जल्दी आओ, सब लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं। ईमान उठने लगी, मगर झील के किनारे के गीली घास पर इसका पाँव फिसल गया। वो सीधी पानी की तरफ झुकी, लेकिन गिरने से पहले हमने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और पहली बार इन दोनों ने दरमियान से खामोशी ज्यादा कुछ और महसूस हुआ। और हमने मजबूती से ईमान का हाथ थामा। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। हल्की बारिश अब भी बरस रही थी। झील के पानी पर बनती लहरें जैसे वक्त को रोक देती थी। ईमान ने आहिस्ते से अपना हाथ पीछे कर लिया। शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मैं शायद वाकई पानी में गिर जाती। और हमने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। ये पहली बार था जब इसने अपनी जिम्मेदारी की बजाय अपने एहसास की बात की थी। ईमान ने इसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह न सकी। इसी वक्त हमजा दौड़ता हुआ इनके पास आया। हम भाई, सब आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। दादा जान ने खानदान की तस्वीर बनवानी है। तीनों वापिस सबके पास आ गए। फोटोग्राफर ने सबको अपनी अपनी जगह खड़ा किया। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम ईमान के साथ खड़ी हो जाओ। आज चंद दिन बाद तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हो। इसके गाल हल्के से सुर्ख हो गए। वो खामोशी से अरहम के बराबर खड़ी हो गई। फोटोग्राफर ने सबको मुस्कुराने के लिए कहा। सब हंसने लगे, मगर अरहम की नजर कैमरे पर नहीं थी। वो एक लम्हे के लिए ईमान की तरफ देख रहा था और इस लम्हे तस्वीर खींच ली गई। शाम ढलने लगी तो सब वापस हवेली आ गए। पूरा दिन हंसी मजाक में गुजर गया, मगर ईमान के जहन में बार बार एक ही जुमला गूंज रहा था, अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं तुम्हें खुद को माफ नहीं कर पाता। अपने कमरे में बैठ के ही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दुआ अंदर आई। इसके हाथ में खूबसूरत डब्बा था। ये अरहम भाई ने भेजा है। ईमान हैरान रह गई। मेरे लिए दुआ ने मुस्कुराते हुए सहलाया। कह रहे थे कल निकाह की रस्मों का खास ये पहन लेना। ईमान ने आहिस्ते से डब्बा खोला। इसके अंदर ना कोई कीमती जेवर था, ना महंगा तोहफा, सिर्फ एक खूबसूरत चांदी का बुक मार्क था जिस पर बहुत नफासत से एक लफ्ज लिखा था। ईमान इसके साथ एक छोटी सी किताब रखी थी, वही मुसन्नफ जिसकी किताब ईमान को बहुत ज्यादा पसंद थी। ईमान की आंखों में हैरत उतर आई। इसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई कि इस मुसन्नफ की किताबें बहुत पसंद है। फिर अरहम को कैसे मालूम हुआ? इस वक्त दुआ ने हंसते हुए कहा, लगता है अरहम भाई तुम्हें खामोशी से बहुत गौर से जानने लगे हैं। ईमान ने किताब को सीने से लगाया और ना जाने क्यों इसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अगली सुबह हवेली में खुशियों का एक अलग ही समा था। आज निकाह की रस्मों का आगाज होने वाला था। औरतें शहर में
बैठी ढोलकी बजा रही थी, हर तरफ हंसी की आवाजें गूंज रही थी, मगर ईमान अपने कमरे में खामोशी बैठी कर रात मिली हुई किताब को देख रही थी। वो बार बार चांदी का बुकमार्क था हाथ में लेकर इस पर लिखा हुआ नाम पढ़ती थी। इस हैरत इतना खामोश इंसान इसकी छोटी छोटी पसंद कैसे जान गया। दुआ दौड़ती हुई अंदर आई। ईमान जल्दी तैयार हो जाओ, सब नीचे बुला रहे। ईमान का हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहना, सादा सी चूड़ियां पहनी और खामोशी से नीचे आ गई। जैसे ही वो शेर में पहुंची, सबकी नजरें इस पर ठहर गई। खाला जरीन ने आगे बढ़कर इसकी परेशानी चूम ली। तुम्हें हमेशा खुश रखे अल्लाह। इस लम्हे हमजा दौड़ता हुआ आया। ईमान वजी और हम भाई आपको ढूंढ रही हैं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देख कर मुस्कुराने लगे। ईमान ने हैरत से पूछा, कहाँ है वो? हमजा ने बाकी तरफ इशारा किया। वो खामोशी से वहां चली गई और हम आम के दरख्त के नीचे खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ईमान को देखा तो फोन बंद कर दिया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अरहम ने अपने हाथ में खुद मौजूद एक लिफाफा इनकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए है। ईमान ने हैरत से लिफाफा खोला। इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म था। ईमान ने चौंक कर अरहम की तरफ देखा। ये तो मास्टर्स में दाखिले का फॉर्म है। अरहम ने आहिस्ते से कहा, मुझे मालूम है तुम अपना पढ़ाई जारी रखना चाहती हो। शादी के बाद भी तुम्हारी तालीम नहीं रुकेगी। तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ईमान की आंखें बेहतर नम हो गई। इसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इसके ख्वाबों को भी इतनी कदर देगा। वो धीमी आवाज में बोली, आपने मेरी ख्वाहिश याद रखी है। अरहम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, किसी इंसान को जानना हो तो इसके ख्वाब याद रखने पड़ते हैं। ये अल्फाज सुनकर ईमान पहली बार कुछ न कह सकी। इसके दिल में अरहम के लिए एहतराम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। इस लम्हे दुआ की आवाज आई और हम भाई ईमान साहब आप दोनों को इंतजार कर रहे हैं। रस्म शुरू होने वाली है। दोनों एक साथ सहन की तरफ चल पड़े और पहली बार इनका दरमियान खामोशी बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि खूबसूरत साथ का एहसास दे रही थी। शाम ढलते ही हवेली रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा गई। पूरा सहन फूलों से सजा हुआ था। मेहमान एक एक करके आ रहे थे। औरतों की हंसी और ढोलकी की आवाज पूरे माहौल को खुशगवार बना रही थी। ईमान अपने कमरे में तैयार बैठी थी। इसके हाथों पर मेहंदी का खूबसूरत रंग चढ़ चुका था। वो खामोशी से अपनी तीली को देख रही थी। दुआ ने शाह से इसकी कोहनी पर हल्का सा हाथ मारा। किसी का इंतजार कर रही है? ईमान ने फौरन नफी में से हिला दिया, नहीं, मैं क्यों किसी का इंतजार करूंगी। दुआ हंसने लगी, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। ईमान कुछ कहने इबादती के जवाब जबरदस्त हुए। एक मुलाजिम ने आकर कहा, दादा जान ने आप दोनों को नीचे बुलाया। ईमान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। नीचे पहुंचते ही इसकी नजरें सामने खड़े अहम पर पड़ी। आज जिसे स्याह रंग की शेरवानी पहन रखी थी, सादगी के बावजूद इसकी शख्सियत सबसे अलग नजर आ रही थी। अरहम की नजर भी पहली बार चंद लम्हों के लिए ईमान पर ठहर गई। सब्ज लिबास में वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन इसने हमेशा की तरह अपनी नजरें फौरन झुका ली। दादा जान ने दोनों को अपने करीब बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, आज एक छोटी सी रस्म है, इसके बाद निकाह में सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे। सबने खामोशी तालियां बजाई। रस्म शुरू हुई। बुजुर्गों ने दोनों को दुआएं दी। खलाएं मजाक कर रही थी। हमजा बार बार दोनों के दरमियान आकर हंसने लगता। काफी देर बाद जब महफिल कुछ पुरसुकून हुई, दादा जान ने हमको आवाज दी, बेटा ईमान को हवेली का पुराना बाग दिखा ला। वो बचपन में वहां बहुत जाया करती थी। और हमने खामोशी से सर हिलाया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ चलने लगे। रात की ठंडी हवा चल रही थी। चांदी पूरे बाग में फैली हुई थी। कुछ देर दोनों खामोश चलते रहे। फिर हम रुक गया। वह अपने झूले के सामने खड़ा था। इसने झूले की तरफ देखा, देखते हुए पूछा, तुम भी अब यहाँ आती हो? ईमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब कभी दिल बहुत भारी हो तो मैं यहीं आ जाती हूँ। और हमने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मुझे भी कभी कभी यहाँ आना आज चाहिए। ईमान ने हैरत से देखा, इसकी तरफ देखा कि और हमने आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कही, बहुत सालों बाद मुझे पहली बार किसी जगह सुकून महसूस हुआ। ईमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके दिल में जैसे कि नरम सा एहसास जन्म ले चुका था। और इसे पहली बार लगा शायद ये रिश्ता सिर्फ बड़ों का फैसला नहीं रहेगा, वक्त के साथ ये दोनों की पसंद भी बन जाएगी। अगली सुबह ईमान की आंख मामूल से पहले खुल गई। खिड़की से बाहर हल्की हल्की धूप फैल रही थी। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही। फिर इसकी नजर मेज पर रखी इस किताब पर पड़ गई और हमने इसे दी थी। इससे आंसू से किताब खोली। अंदर पहली सफे पर एक छोटा सा कागज रखा था। इस पर सिर्फ एक सत्ता लिखी थी, हर ख्वाब को पूरा होने का हक है, मिलना चाहिए। ईमान काफी देर तक वो जुमला देखती रही। बेहतर इसके होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त दुआ कमरे में दाखिल हुई और ईमान को मुस्कुराते देखकर रुक गया। किसी ने हमारी संजीदा मैडम को सहा ही दिया। ईमान ने फौरन के कागज किताब में रख दिया। ऐसी कोई बात नहीं, दुआ ने शायद से कहा। अच्छा, फिर ये मुस्कुराहट किस बात की? ईमान ने जवाब देने की बजाय बात बदल दी। चलो नीचे चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। नाश्ते के बाद दादा जान ने ऐलान किया, आज शाम निकाह के कपड़ों की आजमाइश होगी, सब वक्त पर तैयार रहे। शाम होते ही डिजाइनर हवेली पहुंच गए और ईमान को लेकर अंदर चली गई। इधर हम भी अपनी शेरवानी देख रहा था। हमजा कुर्सी पर बैठा इसे गौर से देख रहा था। यार हम भाई, आप कभी घबराते हैं? और हम हैरत से पूछा, क्यों? हम सास ने कहा, क्योंकि कल आपकी शादी है और आपके चेहरे पर से लगता ही नहीं है। हम खामोशा भी ऐसे से बोला, घबराहट है लेकिन जिम्मेदारी इससे बड़ी है। हमजा ने मासूमियत से कहा, अगर आप ईमान बाजी को हमेशा ऐसे ही सानते रहेंगे
सब आसान हो जाएगा। ये सुनकर हम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इधर ईमान जब तैयार होकर बाहर आई तो सबने इसकी तो बहुत तारीफ की। जब जाने खुश होकर दुआ कहा, तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। इस लम्हे हम भी हाल में आ गया। इसकी नजर चंद लम्हों के लिए ईमान पर ठहर गई, फिर इसने नजरें झुका ली, लेकिन जान की नजर दोनों के चेहरों पर थी। वो मुस्कुरा दिए। इन्हें महसूस हो चुका था कि रिश्ता अब सिर्फ एक फैसला नहीं रहा, दोनों के दिल आहिस्ते से एक दूसरे को कबूल करने लगे हैं। और कल से पहले में इन दोनों का निकाह होने वाला था। सुबह फजर के अज़ान के साथ भी ये पूरी हवेली जाग उठी। आज निकाह का दिन था। शहर में सफेद और सुनहरे फूल सजाए जा रहे थे। मेहमानों की गाड़ियां एक के बाद एक अंदर रहा हो रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, मगर ईमान अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी। इसने आईने में खुद को देखा। आज वो वाकई दुल्हन बनी हुई थी। सुर्ख लिबास, सादा जेवर, आंखों में अजीब सी घबराहट। दुआ इसकी बराबर आकर बैठी। तुम डर रही हो? ईमान ने आहिस्ता से सर हिलाया दिया। शायद हर लड़की अपनी जिंदगी के इस दिन से डरती है, अगर घर छोड़ने से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी शुरू करने से। दुआ ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर ईमान की आंखें नम हो गई। इस वक्त बाहर से किसी ने आवाज दी, दुल्हन को तैयार कर दे, काजी साहब आ चुके हैं। दीवान खाने में अरहम से बेशरवानी में खामोश बैठा था। इसने के बराबर दादा जान मौजूद थे। इन्होंने अरहम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनेगा, आज इसे एक लड़की अपनी पूरी दुनिया छोड़कर तुम पर इत्मीनान करेगी। इस इत्मीनान को कभी टूटने मत देना। अरहम ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, मेरी पूरी कोशिश करूंगा। चंद लम्हों बाद काजी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। सबकी नजरें अरहम पर थी। काजी साहब ने सवाल किया, अरहम खानज़ादा, क्या आपको ईमान बिनते सलीम खानज़ादा से निकाह कबूल है? अरहम ने बगैर किसी हिचकिचाहट की जवाब दिया, कबूल है। तीसरी बार कबूल है। इसी वक्त दूसरे कमरे में बैठी ईमान की आंखों से एक आंसू निकला तो इसके हाथ पर गिरा। काजी साहब ने इसे भी वही सवाल किया। चंद लम्हों और खामोश रही। फिर ईमान ने धीमे मगर पुख्ता आवाज में कहा, कबूल है। दूसरी बार कबूल है। तीसरी बार कबूल है। पूरे घर में मुबारकबाद की आवाजें गूंजी। दादा जान ने सजदा शुक्र किया। हमजा खुशी से तालियां बजाने लगा। दुआ ने ईमान को गले लगा लिया। कुछ देर बाद रुस्ती से पहले बार ईमान और हम एक कमरे में आए। दोनों चंद कदम के फासले पर खड़े थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। और हम ने ऐसा से कहा, से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो खामोश मत रहना, मुझे बता देना। ईमान ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप खामोश रहे तो फिर बात मैं करूंगी। ये सुनकर हम पहली बार दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। और पहली बार मुस्कुराहट की नए सफर का पहला खूबसूरत लम्हा बन गई। रुखसती के बाद जब गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो शाम ढल चुकी थी। पूरा शहर खुशी से जगमगा रहा था। मुलाजिम कतार में खड़े थे। दादा जान ने दोनों के सरों पर हाथ रखा था। दुआ ये तुम दोनों के नसीब हमेशा सुकून लिखे। ईमान ने पहली बार इस हवेली में दुल्हन बनकर कदम रखा था। इसका दिल किसी तरह रखा था। हर तरफ नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां और नई जिंदगी इसका इंतजार कर रही थी। कुछ रस्मों के बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ चल गए। दुआ जाते जाते ईमान का कान में हंसकर बोली, यार डरना मत अरहम भाई, बाहर से जितने संजीदा है अंदर से शायद इतने ही अच्छे होंगे। ईमान ने शर्माकर नजर झुका ली। रात काफी हो चुकी थी। ईमान आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई। कमरा नहायत सादगी से सजाया गया था। खिड़की के पर्दे हल्के से हवा जैसे हिल रहे थे। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास ही खड़ी रही। इस वक्त बालकोनी का दरवाजा खुला और हम अंदर आए। से ईमान को देखा, फिर मैं उससे फांसी पर रुक गया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। चंद लम्हों बाद हमने आयशा से कहा, तुम पूरा दिन बहुत थक गई होगी, या पहले आराम कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं आज लाइब्रेरी में सो जाता हूँ। आज जब तक तुम इस नए माहौल में खुद को आसान महसूस न करने लगो। ईमान ने हैरत से इसके तरफ देखा। इसे इस जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, इसकी जरूरत नहीं, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और हमने फौरन सर हिला दिया। जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं कभी तुम पर किसी बात करने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। ये सुनकर ईमान के दिल का बोझ जैसे आधा रह गया। और हमने मेज पर रखा पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया और खुद सोफे पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों खामोश रहे, मगर इसकी खामोशी से अजनबियत पहले जैसी नहीं थी। कुछ देर बाद बिजली अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ईमान चौंक गई। वो बचपन से देर से डरती थी। हमने फौरन मोबाइल की हल्की सी रोशनी जला दी। घबराओ नहीं, चंद मिनट बाद जनरेटर चल जाएगा। ईमान ने पहली बार दिल से मुस्कुरा इसकी तरफ देखा। ये पता नहीं क्यों, लेकिन इसे महसूस हुआ था वैसे इंसान के साथ महफूज है। और यही एहसास किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत शुरुआत होता है। सुबह सूरज की रोशनी की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो ईमान की आंख खुल गई। वो चंद लम्हे खामोश टेढ़ी रही। फिर अचानक इसे याद आया कि अब ये इसका कमरा था, इसकी नई जिंदगी का पहला दिन। वो आहिस्ते से उठे, देखा तो और हम सोफे पर ही सो गया था। रात शायद इसे अभी अच्छी नींद नहीं आई थी। ईमान ने खामोशी से अलमारी से एक हल्की सी चादर निकाली और आहिस्ते इसके कंधों पर
लगती जैसे ही वो पीछे उठी और हम की आंख खुल गई। जो दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे। ईमान घबरा गई। मैंने आपको जगाने का इरादा नहीं किया था। और हमने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने जगाया भी नहीं, सिर्फ ख्याल रखा है। ये सुनकर ईमान खामोश हो गए। कुछ लम्हों बाद वो तैयार होने लगी, अंदर चली गई। नाश्ते की मेज पर आज पहली बार इसी दुल्हन बनकर बुला रहे थे। हमजा कुर्सी खींच कर इसके बराबर बैठ गया। अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना? ईमान ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे तो नहीं जाऊंगी। हमजा फौरन बोला, मैं तो रोज तंग करूंगा। सब लोग हंस पड़े। नाश्ता खत्म होने के बाद दादा जान ने अरहम को आवाज दी, आज से कमरे की जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लो और शाम को ईमान को शहर भी ले जाना है। इसे जो चीज पसंद आए खरीद देना। और हमने दर्जी से हलाया। दोपहर के वक्त वो दोनों शहर रवाना हुए। रास्ते में ईमान खामोशी से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद हम ने गाड़ी एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने रोकी। ईमान ने हैरत से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? और हमने सुकून से जवाब दिया, हर इंसान का एक ऐसा मुकाम होता है जहाँ जाकर वो खुद को खुश महसूस करता है। मुझे लगा है शायद तुम्हारी जगह यही है। ईमान के चेहरे पर बेप्यार मुस्कुराहट आ गई। वो दुकान के अंदर गई। किताबें देखते हुए वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह खुश नजर आ रही थी। और हम दूर खड़ा खामोशी से देख रहा था। इसे पहली बार महसूस किया था किसी इंसान को महंगे तोहफे नहीं बल्कि इसकी पसंद की चीज खुश करती है। वापसी पर ईमान की हाथ में सिर्फ 2 किताबें थी। और हमने हैरान होकर पूछा, सिर्फ दो? तुम तो पूरी दुकान खरीद सकती थी। ईमान ने हंस दी। जरूरत से ज्यादा चीजें रखने से ज्यादा खुशी जरूरत के मुताबिक चीजें रखने में होती है। और हमने पहली बार दिल में सोचा, ये लड़की वाकई दूसरों से मोती है। और शायद इसी सादगी इसके दिल में खुशी खामोशी जगह बनानी शुरू कर दी थी। शाम होने तक दोनों वापस हवेली पहुंचे। जैसी गाड़ी से हमसे दौड़ता हुआ बाहर आया, वो सीधा ईमान के हाथों में मौजूद किताबों की तरफ देखने लगा। आप मेरे लिए क्या लाए? ईमान ने मुस्कुराकर एक छोटी सी कहानियों की किताब इसकी तरफ बढ़ा दी। हमजा होशी से उछल पड़ा, मैं आज भी ही पूरी पढ़ूंगा। और हम खामोशी से मंजर देखते रहा। इसे अच्छा लगा कि ईमान ने अपने लिए नहीं बल्कि हमजा के लिए भी सोचा। रात के खाने पर पूरा खानदान एक साथ बैठा था। खाला जरीन ने हंसते हुए कहा, हम तो तुम्हें घर में ढूंढना मुश्किल होता था, अब रोज ईमान के साथ कहीं न कहीं नजर आ जाते हो। सब लोग हंसने लगे और हमने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी। ईमान ने शर्मा कर पानी का गिलास उठा लिया। खाने के बाद दादा जान ने सबको ईमान को अपने पास बिठा लिया। बचपन की बातें शुरू हो गई। किसी ने अरहम की शरारतें सुनाई, किसी ने ईमान की मासूम हरकतें। हमजा अचानक बोला, दादा जान ने एक बात बताऊं? अरहम भाई आज ईमान वाजी को किताबों की दुकान पर ले गए थे। ये सुनते ही सबने हैरत से अरहम की तरफ देखा। दादा जान मुस्कुरा दी, तुम्हें कैसे मालूम किया इसे किताबें पसंद है? और हमने स्कूल से जवाब दिया, बस मालूम हो गया। दादा जान ने मानी खेज नजरों से देखा। किसी को जानने के लिए वक्त देना पड़ता है, लगता तुमने देना शुरू कर दिया है। और हमने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रात काफी हो चुकी थी। ईमान बालकोनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। नीचे बाग में हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चंद लम्हों बाद इसने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली। इस बार ना ईमान ने फौरन नजरें झुकाई ना हमने रुख मोड़ा। कई लम्हे गुजर गए। फिर हमने आहिस्ता से हाथ के इशारे से पूछा, नींद नहीं आ रही? ईमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया और हमने बाग की तरफ इशारा किया। अगर दिल चाहे तो चंद मिनट चल सकते हैं। ईमान चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी उतरने लगी। शायद पहली बार अपनी मर्जी से अरहम के साथ कुछ वक्त गुजारने जा रही थी। ईमान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर बाग में आ गई। रात की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा बाग खामोश था। सिर्फ फव्वारे से गिरते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। अरहम चंद कदम आगे चल रहा था। ईमान इसके बराबर आकर रुक गई। दोनों चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर ईमान ने आहिस्ता से पूछा, आपको खामोशी इतनी क्यों पसंद है? और हमने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, खामोशी इंसान से कभी झूठ नहीं बोलती। लोग बोलते हुए अक्सर अपने असल जज्बात छुपा लेते हैं, मगर खामोश रहकर नहीं। ईमान ने पहली बार इस जवाब पर गौर किया। पहली मुस्कुराहट हल्की सी उनके साथ बोली, तो फिर आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? और हम चंद लम्हों के लिए रुक गया। पहली बार इस सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान नहीं था। हारिस ने आहिस्ता से कहा, ये कि शायद मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। ईमान ने नजरें झुका ली। इसके दिल की धड़कन पहली बार तेज हो गई। इतने में अचानक बिजली की हल्की सी कड़क सुनाई दी। चंद लम्हों बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की सी फिर तेज। ईमान ने बेहतियात आसमान की तरफ देखा। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ गई। वो बारिश में भीगते हुए चंद कदम आगे बढ़ी और हम खामोशी से देखते हैं। फिर इसने आवाज दी, ईमान तुम बीमार हो जाओगी। ईमान ने हंसते हुए बोला, जवाब दिया,
ہر بارش بیماری نہیں لاتی، کچھ بارش دل کو بھی سکون دیتی ہے۔ یہ کر اس نے دونوں ہاتھ بارش میں پھیلا دیا، رب نے کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ اسی لمحے ایمان کا پاؤں گلی کاسا پھسلا، مگر اس بار گرنے سے پہلے ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ شاید یہ پہلی بار جب ارحم کی ہنسی کی آواز ایمان نے سنی تھی۔ وہ زیادہ نہیں ہنسا، مگر اتنا ضرور تھا کہ ایمان کو یقین آ گیا، اس خاموش انسان کے دل میں بھی خوشی رہتی ہے۔ اس وقت برآمدے میں سے آواز آئی، آپ دونوں پوری طرح بھیگ گئے ہیں، جلدی اندر آ جائیں ورنہ خالہ جان ڈانٹے گی۔ ایمان اور ارحم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور پہلی بار دونوں ایک ساتھ قدم ملا کر حویلی کی طرف چل پڑے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ بارش رک گئی تھی، مگر حویلی کے سر میں بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو اب بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں آ کر تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی، دروازہ کھولا تو باہر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی تھا، ٹرے پر گرم کافی کا مگ رکھا تھا۔ ملازم نے ادب سے کہا، بڑی بہو، یہ ارحم صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بارش میں بھیگنے کے بعد یہ پی لیجیے گا۔ ایمان نے حیا سے مگ ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف ہلکا سا شکریہ ادا کیا۔ ملازم چلا گیا۔ ایمان کافی دیر تک اسے مگ کو دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا ارحم اپنی فکر کبھی لفظوں سے ظاہر نہیں کرتا، وہ خاموشی سے حیا رکھتا ہے۔ دوسری طرف ارحم اپنے کمرے میں فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار ادھر ہی جا رہا تھا کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایمان کی فکر اسے کیوں ہونے لگی ہے۔ اسی وقت دادا جان اندر آئی۔ انہوں نے ارحم کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کام کر رہے ہو؟ اور ہم نے فائل بند کر دی۔ جی دادا جان مسکرا دیے۔ ایک بات پوچھوں، تم خوش ہو؟ اور ہم نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولا، پہلے مجھے لگتا تھا شادی صرف ایک ذمہ داری ہے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ اچھا ہو تو ذمہ داری بھی آسان لگتی ہے اور زندگی جنت بن جاتی ہے۔ دادا جان نے اطمینان سے سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حمزہ ضد کرنے لگا، آج سب کو کوئی کھیل کھیلنا ہوگا۔ دعا فوراً بولی، چلو سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ایک اچھی باتیں بتائیں گے۔ سب نے خوشی سے حامی بھر لی، ایک ایک کر کے سب نے ایک دوسرے کی تعریف کی۔ آخر میں حمزہ شرارت سے بولا، اب ارحم بھائی کی باری ہے، وہ ایمان باجی کے بارے میں بتائیں گے۔ صحن خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ارحم پر تھی۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ایمان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ ہوتی ہے وہاں سکون آ جاتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایمان بے اختیار سر اٹھایا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ اس گھر کی صرف بہو نہیں ہے، بلکہ ارحم کی زندگی کا بھی آہستہ آہستہ ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اور ارحم نے بھی پہلی بار اپنے دل کی ایک بات سب کے سامنے کہہ دی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی کا ماحول جیسے بدلنے لگا۔ پہلے جہاں ارحم اور ایمان ایک دوسرے سے صرف ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے، اب کبھی ناشتے کی میز پر، کبھی باغ میں اور کبھی لائبریری میں چند لمحوں کی مختصر گفتگو ہونے لگی تھی۔ یہ پورے گھر نے محسوس کر لی تھی۔ صبح ایمان حسب معمول لائبریری میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ارحم خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد ایمان نے کتاب بند کر دی۔ آپ اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ ارحم نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ دادا جان نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور میں نہیں چاہتا کبھی انہیں میری وجہ سے پریشانی ہو۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، اور اگر کبھی آپ خود تھک جائیں تب؟ یہ سوال سن کر ارحم پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس نے شاید کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے ایمان نے میز پر رکھا چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کبھی کبھی صرف 5 منٹ آرام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ارحم نے کپ لیا اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے کہا، شکریہ۔ دوپہر کے وقت دادا جان نے سب کو دیوان خانے میں جمع کیا۔ انہوں نے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی منگوائی۔ صندوقچی کھولتے ہی اس میں پرانی تصویریں اور چند ڈائریاں نظر آئیں۔ حمزہ فوراً قریب آ گیا۔ دادا جان نے، یہ کیا ہے؟ دادا جان مسکرا، یہ ہمارے خاندان کی یادیں ہیں۔ انہوں نے ایک تصویر نکال کر ایمان کو دی۔ دیکھو اس تصویر میں 5 سال کا ارحم مٹی سے بھرے کپڑے، ہاتھ میں زخمی چڑیا اور چہرے پر بے فکر ایمان بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ واقعی آپ ہیں؟ ارحم نے ہلکی سی شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ دادا جان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بچپن میں ایسا ہی تھا، اپنی تکلیف چھپا لیتا تھا، مگر کسی کو اور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایمان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سے نرمی میں بدل گئی۔ اب اسے سمجھ آنے لگا کہ ارحم کا خاموش ہونا بے حسی نہیں بلکہ شخصیت کا حصہ تھا۔ شام کو دونوں باغ میں بیٹھے تھے، ہوا ہلکی ٹھنڈک تھی۔ ایمان نے اچانک پوچھا، اگر دادا جان یہ رشتہ طے نہ کرے تو کیا آپ بھی کبھی خود شادی کرتے؟ ارحم نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا، تو پھر دھیمی سی آواز میں بولا، شاید نہیں،
क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास वक्त ही नहीं। ईमान ने उसका अगर कहा, अगर हमने पहली बार बिना नजर चुराई इसकी तरफ देखा, अब लगता है कुछ रिश्ते भी वक्त के नहीं रहते, खुद वक्त को खूबसूरत बना देते हैं। ये सुनकर ईमान खामोश होगी, इसके गालों पर हल्की सी लाली उतर आई। दूर खड़े दादा जान ने दोनों को जो बैठते देखा, एक दूसरे को एक साथ बैठते देखा। इन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, दिल में शुक्रिया अदा किया। इन्होंने महसूस किया कि ये शब्द सिर्फ कागज पर नहीं, दिलों में भी उतरने लगा था। इनका कोई हफ्ता गुजर चुका था, हवेली की रौनक पहले जैसी नहीं रही थी, मगर एक फर्क आ चुका था। अगर हम जब दफ्तर से वापस तो सबसे पहले इसकी नजर बेहतर ईमान को तलाश करती, और ईमान भी शाम होती बालकोनी में खड़ी इस गाड़ी की आवाज सुनने लगती जिसमें हम घर वापस आता था। एक शाम हम अमूल से काफी देर बाद हवेली पहुंचा। रात को 9 बज रही थी। इसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, जैसे वो ही अंदर आया था। बहुत ज्यादा जाने पूछा, ये सब है यार? हमने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि नहीं, कंपनी के साथ मुआवजा था, इसमें देर हो गई। ये कहकर वो अपने कमरे में ऊपर की तरफ चला गया। कमरे का दरवाजा खुला था, चंद लम्हों के लिए वो वहीं कर रुक गया। मेज पर गर्म खाना रखा था, साथ एक छोटी सी पर्ची थी। इस पर सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे मालूम है आप देर से आई हैं, बराए करम खाना खाइएगा, बगैर मत सोइएगा। और हमने वो तहरीर दोबारा पढ़ी, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। ये चंद अल्फाज शायद पूरे दिन की थकन से ज्यादा ताकत दे रहे थे। इस वक्त ईमान पानी का जग लिए कमरे में आई थी वो, और हमको देखकर रुक गई। आप आ गए? मैं समझ रही थी कि आप खाना बाहर खा लेंगे। और हमने पर्ची हाथ में पकड़े हुए कहा, ये तुमने लिखी थी? ईमान ने हल्के से सर हिलाते, जी मैं जी आप सुबह भी नाश्ता किए बगैर चले गए थे, इसलिए फिक्र हो रही थी। और हम चंद में खामोशा, फिर पहली बार इसने दिल से कहा, कई सालों बाद किसी ने मेरा इंतजार किया। ये सुनकर ईमान की आंखों में नमी उतर आई। धीमी सी आवाज में बोली, आप अकेले नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। ये और आपकी फिक्र करना मेरी जिम्मेदारी है। और हमने आयशा से रफी में सर हिलाया, नहीं सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये अपनापन है, और यही चीज इंसान को घर वापस आने पर मजबूर करती है। दोनों के दरमियान खुशी छा गई, मगर आज इस खुशी में एक नया एहसास शामिल था, एतमाद अपना ये तो वो सुकून जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में पैदा होता है। इसी लम्हे नीचे से हमजा की जोरदार आवाज आई, और हम बाइक का दादा जान साहब को पुराने हवेली ले जा रही हैं, वहां सालों से कोई नहीं गया, मैं भी चलूंगा। और हम और ईमान एक दूसरे को देखने के लिए मालूम नहीं था कि पुरानी हवेली की ये सफर इनकी जिंदगी का रूप बदलने वाला है हमेशा के लिए। हाँ, अगली सुबह नाश्ते की फौरन बाद सब लोग पुरानी हवेली जाने की तैयारी करने लगे। ये हवेली मौजूदा खानजादा हाउस से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर थी। दादा जान ने कई सालों से वहां कदम नहीं रखा था। हम तो खुशी से सबसे पहले गाड़ी में जा बैठा। ईमान ने आहिस्ते से हम की तरफ देखा, आप पहले कभी वहां गए हैं? हमने मुझसे जवाब दिया, बहुत छोटा था, इसके बाद कभी नहीं गया था। कुछ देर बाद काफला पुरानी हवेली के सामने का रुका को लोहे का बड़ा दरवाजा वक्त के साथ पुराना हो चुका था। इसकी शान अब भी कायम थी। दरवाजा खुला तो सामने सदियों पुराना से संगमरमर के सतून, ऊंची रावे लंबे बरामदे, और बीच में एक खुश्क पाई माने एला से चारों तरफ देखा। यही जगह किसी कहानी जैसी लग रही थी। दादा जान की आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। इन्होंने आयशा से कहा, वो घर है जहाँ खानदान ने अपनी पहली ससुरी और हर दीवार एक सयाद संभाले बैठी है। सबकी लोग अपने कमरों की तरफ चले गए। हम दीवार ऊपर की मंजिल की तरफ चले गए, बरामदे से गुजर गए थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर बरसों की गर्द जमी हुई थी। ईमान की तस्वीर के सामने रोगी, इसमें खून हो, हर नौजवान हो तो सफेद कपड़े पहने हुई थी। ये कौन है? हम जानना, मगर मोशा फिर दिन से बाद में बोला, मेरी वालदा। ईमान ने पहली बार अरहम के चेहरे पर ऐसी जुदा से देखी हो जैसे वो हमेशा छुपा लेता है। कुछ कहने वाला था कि अरहम तस्वीर से गिर्द साफ किया, और बहुत ऐसे का वो इस वाली से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन इनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजर सका। कमरे में खामोशी छा गई। ईमान ने बगैर कुछ कहे अपना हाथ आहिस्ता से अरहम के हाथ पर रख दिया। पहला मौका था जब इसने खुद से फासला खत्म किया था। हम चाहूँ कर इसकी तरफ देखा, मगर इसने हाथ नहीं उठाया। सिर्फ इतना कहा, जो लोग दिल से मोहब्बत करते हैं वो कभी मुकम्मल तौर पर जाते हैं, वो अपनी यादों में जिंदा रहते हैं। और हम पहली बार इसके हाथ को हल्का सा थाम लिया। इसकी आंखों में बरसों बाद नमी चमक उठी। लम्हे ऊपर वाले मंजिल से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भाई जमीन पर गिर गया हो। हमजा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हमजा की चीख सुनते ही हमारी ईमान तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां इनके कदमों की आवाज से गूंज उठी, और ऊपर पहुंचकर तो वह घबराई हुई कमरे के बाहर खड़ी थी, और हमजा जमीन पर बैठा एक प्लेट होना पकड़ा हुआ था। इसके करीब एक बारी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा आधा टूटकर गिर चुका था। हम फौरन हमजा के पास घुटनों के बल बैठ गया। कहा, चोट लगी? हमजा अंदर से दांत बेंचे कहा, मैं गिर गया था, ये दरवाजा भी अचानक खुल गया। और हमने इसका पाँव गौर से देखा, सिर्फ मामूली सी मोच थी। इसने सुकून का सांस लिया, फिर इसने अपनी बाहों में उठा लिया। नीचे चलते ही दादा जान देख लेंगे। ईमान ने दुआ का हाथ थाम लिया, मत घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चंद मिनट बाद सब नीचे दीवान खाने में मौजूद थे। दीवान दादा जान ने हमजा के पाँव पर बर्फ रखी और मुस्कुरा कर बोले, बहादुर बनते हो। बड़ी सी चोट पर चीख पूरे जिले को सुना दी। सब हंस पड़े। हमजा ने शर्मिंदगी से नजर झुका ली। इसी दौरान दादा जान की नजर कमरे के एक पुराने दरवाजे पर पड़ी। इन्होंने आहिस्ते से
तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा खोला, अंदर एक वसी कमरा था जिसमें पुरानी तस्वीर, कदीम फर्नीचर दीवार पर लगी एक बड़ी सी खानदानी तस्वीर मौजूद थी। दज्जान काफी देर तक इस तस्वीर को देखते रही, फिर इन्होंने रम और ईमान को अपने पास बुलाया। ये तस्वीर आज से तकरीबन 40 साल पहले की है, इसमें हमारे खानदान की 44 नस्लें एक साथ हैं। इन्होंने तस्वीर के कोने पर हाथ रखा, ये तुम्हारे वालिद है और ये ईमान के वालिद, देखो बचपन से कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ईमान खामोशी से तस्वीर देखते रही। इसी पहली बार एहसास हुआ कि इनके दोनों खानदानों का ताल्लुक सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि कई नस्लों की मोहब्बत और इत्मीनान का था। वापसी का वक्त हो चुका था, सब लोग गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे और हमने देखा ईमान अभी भी पुरानी हवेली के दरवाजे के पर खड़ी पीछे देख रही थी। वो इसके करीब आया, सोच रही हो, ईमान ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह खाली नहीं लगती, ऐसे महसूस होता है जैसे यहाँ रहने वालों की दुआएं अब भी इन दीवारों में मौजूद है। और हमने पहली बार इसकी बात पर फौरन जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, शायद इसलिए ज्यादा जाना आज हमें यहाँ लाए थे कि ताकि हम समझ सके रिश्ते सिर्फ हाथ से नहीं बनते, बाद रिश्ते दोस्तों की दुआओं से मजबूत होते हैं। गाड़ी ऐसा ऐसा पुरानी हवेली से दूर होने लगी, मगर किसी को नजर नहीं था कि ऐसी सफर के बाद अरहम के माजी से जुड़ा था एक शख्स दोबारा इनकी जिंदगी में आने वाला था। पुरानी हवेली से वापस आए 2 दिन गुजर चुके थे, जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई थी। हम सुबह दफ्तर चला जाता और शाम ढलते ही वो वापस हवेली नहीं आ जाता, लेकिन आज सुबह नाश्ते के दौरान एक गैर मुतवक्का खबर ने सबको चौंका दिया। एक मुलाजिम अंदर आया, सब लंदन से मेहमान आए हैं, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। और हमने हैरत से सर उठाया, लंदन से? चंद लम्हों बाद एक लंबा नौजवान दीवान खाने में दाखिल हुआ, नीली ब्लेजर पर सुकून चिरा और होंठों पर मुस्कुराहट। जैसे ही इसकी नजर अरहम पर पड़ी तो वो आगे बढ़ा, हम कितनी साल बाद मिल रही हैं। हम भी अपनी जगह से उठ गया, दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। दादाजान मुस्कुरा दिए। ईमान ने, या आदिल है अरहम का यूनिवर्सिटी का सबसे करीबी दोस्त, कई साल लंदन में था, साथ रहे थे। आदिल के एहतराम से ईमान को सलाम किया, भाभी आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो समझता था अरहम कभी शादी नहीं करेगा, ये सुनकर बुरा हाल हंस पड़ा। सिर्फ अरहम मुस्कुरा रहा था। चाय के दौरान आदिल मुसलसल पुरानी बातें सुनाता रहा, बता रहा था कि लंदन में अरहम सबकी मदद करता था, मगर अपनी किसी परेशानी का जिक्र नहीं करता था। ईमान खामोशी से सब सुन रही थी। इसी में हुआ, अगर हर जगह एक जैसा ही था, कम बोलने वाला लेकिन दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहने वाला। दोपहर के बाद आदल ने कहा, हम चलो जरा बाग में चलते हैं, काफी दिनों के बाद बातें करनी है। दोनों के बाग में चले गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद आदल ने अरहम की तरफ देखा, एक बात पूछो, तुम वाकई खुश हो? और हमने बगैर सोचे जवाब दिया, हाँ। आदल ने मुस्कुराकर कहा, तो पहले तुम सिर्फ जीते थे, अब तुम लगता है तुम जिंदगी गुजार रहे हो। और हमने दोबारा बालकोनी की तरफ देखा, जहाँ ईमान हमजा के साथ खड़ी हंस रही थी। इसकी नजर चंद लम्हों के लिए वही रुक गई, फिर इसने आस्ते से कहा, शायद घर वो नहीं होता जहाँ इंसान रहता है, घर वो होता है जहाँ कोई इंसान तुम्हारा इंतजार करता हो। आदिल ने इसकी बात सुनकर इत्मीनान से सर हिला दिया। इसे अंदाजा हो गया था कि इसका दोस्त जो बरसों तक सिर्फ जिम्मेदारियों में जीता रहा था, अब पहली बार दिल से जीना सीख रहा था। मगर इस वक्त हवेली के मरकजी दरवाजे के सामने एक सयाह गाड़ी आकर रुकी। एक नफीस लिबास में पहने बावकार खातून नीचे उतरी। इन्होंने हवेली की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हर कार में वापिस आ ही गई। मुलाजिम तेजी से अंदर आया। दजान को खातून आपसे मिलने आई है, वो कह रही है कि वह हम साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और हम के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब हो गई। दीवान खाने में खामोशी छा गई। दादा जान ने मुलाजिम की तरफ देखा, इन्हें अंदर ले आओ। चंद लम्हों बाद वो खातून आहिस्ते से अंदर दाखिल हुई। सफेद लिबास पर सुकून चेहरा और आंखों में बरसों की तकलीफ। जैसे ही अरहम की नजर इन पर पड़ी तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर चेहरा साफ दिखाई दे रही थी। आदिल ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इन्हें जानती हो? और हमने आहिस्ते से जवाब दिया, जी, ये मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सारा है, इन्होंने मुझे लंदन में बहुत कुछ सिखाया था। डॉक्टर सारा ने मुस्कुराते हुए दादा जान को सलाम किया। मुझे उम्मीद है मेरी अचानक आमद से आप लोग बुरा नहीं लगा होगा। दादा जान ने मोहब्बत से जवाब दिया, मेहमान कभी अचानक नहीं आती, इनका आना हमेशा खुशी लाता है, बराए करम तशरीफ फरमाइए। ईमान खामोशी से सबको देख रही थी। डॉक्टर सारा की गुफ्तगू में वकार था और इनके लम्हे में सिर्फ उस्ताद जैसी शफकत। कुछ देर बाद चाय की पेश की गई। डॉक्टर सारा ने ईमान की तरफ देखा और बहुत खुश हुई। कहती, बहुत तुम खुशकिस्मत हो, और हम बाहर से जितना खामोश है दिल से इतना ही अच्छा है इंसान है। लंदन में जब भी किसी तालिब इल्म को मुश्किल पेश आती थी, सबसे पहले अरहम इसकी मदद करता था, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताता था कि वो खुद कितनी मुश्किल से गुजर रहा है। ईमान खामोशी से अरहम की तरफ देखने लगी। वो हमेशा की तरह नजर झुकाए बैठा था, जैसे तारीफ सुनने की आदत ही ना हो। कुछ देर बाद डॉक्टर सारा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। इन्होंने वो डायरी अरहम की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी है, तुम जल्दी में लंदन छोड़ आई थी, मैंने सोचा ईमान वापस कर दूं। और हमने ऐसे डायरी ली। इसने बरसों से इन्हें देखा
था। इसके हाथ चंद लम्हों के लिए रुक गए। दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये तुम्हारी जाती चीज है तो तुम तो बाद में देख लेना। डॉक्टर सारा हम शाम तक रुखसत हो गई। रात गहरी हो चुकी थी और हम बालकनी में खड़ा था, इस डायरी को देख रहा था। ईमान खामोशी से इसके पास आ गई। अगर आप ना चाहे तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। और हमने पहली बार बिना झिझक की इसकी तरफ देखा, फिर डायरी इसके हाथ में रख दी। नहीं, अब मेरी जिंदगी में कोई बात ऐसी नहीं जो तुमसे छुपानी चाहिए। ईमान ने हैरत से डायरी की तरफ देखा और हमने धीमी आवाज में कहा, इसमें मेरे ख्वाब है, मेरी नाकामियां हैं और वो दिन है जब मैंने फैसला किया था कि कभी शादी नहीं करूंगा। ईमान ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा और पहली बार से महसूस हुआ कि आज रात हम अपने दिल की वो दरवाजा खोलने वाला है जिसे बरसों से किसी ने नहीं देखा था। रात बहुत खामोश थी। बालकोनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हर चांदी पूरी बाग पर बिखरी हुई थी और हमने वो डायरी ईमान के हाथ में दे दी। ईमान ने इतिहास से पहला सफा खोला। अंदर एक तहरीर लिखी थी 7 साल पहले। इसके नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अगर कभी अपनी ख्वाहिशों पर खानदानों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा खानदान को चुनूंगा। ईमान ने आहिस्ते से अगला सफा पलटा। हर सफे पर सिर्फ चंद सतरें थी। किसी सफे पर काम कारोबार के ख्वाब, किसी पर दादा जान के लिए फिक्र, कहीं अपनी मरहूम वालदा का जिक्र। ईमान खामोशी से पढ़ती रही। फिर एक सफे पर आकर इसकी नजरें रुक गई। इस पर लिखा था, मुझे लगता है कि मेरे हिस्से में मोहब्बत नहीं लिखी गई। शायद कुछ लोग सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए पैदा होते हैं। ईमान ने धीरे से डायरी बंद कर दी। इसने अरहम की तरफ देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा था? और हमने पूरा अंधेरे में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जब अम्मी दुनिया से गई थी तो इसके बाद जिंदगी ने मुझे बहुत जल्द बड़ा बना दिया। फिर तालीम, फिर कारोबार, फिर खानदान। मैंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं और एक वक्त आया जब मुझे यकीन हुआ कि मेरी जिंदगी मोहब्बत की जगह ही नहीं। ईमान खामोशी से सुनती रही। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, और अब हम पहली बार इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है गलत था मैं। मोहब्बत शोर से नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की आदत बन जाती है, जैसे तुम बन गई हो। ये अल्फाज सुनकर ईमान की दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने नजर झुका ली, मगर इसके चेहरे पर ही फैलती मुस्कुराहट छुप न सकी। इसी लम्हे नीचे सेन से दादा जान की आवाज आई, हम बेटा जरा नीचे आओ। दोनों नीचे पहुंचे। दादा जान के हाथ में एक पुराना लिफाफा था। इन्होंने वो आराम को दे दिया। तुम्हारे वालिद ने अपनी वफात से कुछ दिन पहले मुझे दिया था। इन्होंने कहा था ये सिर्फ अरहम को देना जब वो अपनी जिंदगी में वाकई खुश हो जाए। और हम ने हैरत से लिफाफा खोला लिया। इसने हल्के से हाथ काम करे। इसने जब लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक खत मिला था, जिसके पहली नजर पर पड़ते ही इसकी आंखें नम हो गई। मेरे बेटे अरहम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे तो इसका मतलब तुम्हें आखिरकार वो इंसान मिल गया है जिसके साथ तुम दिल से मुस्कुराना सीख गए हो। अरहम ने खत को मजबूती से थाम लिया। ईमान खामोशी से इसके करीब खड़ी हो गई और इसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ नहीं, दुआओं के साथ भी इंसान तक पहुंचती हैं। दादा जान पैर खामोशी से वहां उठकर चले गए। जहन में से अरहम और ईमान रह गए थे। रात गैर मामूली तौर पर सुकून थी। अरहम ने गहरा सांस लिया, फिर अपने वालिद का खत खोला। इसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता हर लफ्ज पर ठहरती गई। मेरे प्यारे बेटे अरहम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे हमेशा एक बात का डर रहा कि मेरी तरह तुम भी अपनी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में ना गुजार दो। बेटा, कारोबार संभाल लेना आसान है, घर संभाल लेना आसान है, लेकिन किसी के दिल को संभाल लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर कभी तुम्हें इंसान मिल जाए जो तुम्हारी खामोशी भी समझ ले तो कभी इसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा संजीदगी देखी है और यही बात मुझे हमेशा परेशान करती रही कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें ऐसा साथी दे जिसके साथ तुम हंसना सीख जाओ। और अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है तो इसका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि दौलत दोबारा मिल सकती है, वक्त भी वापिस आ सकता है, लेकिन मुखलिस इंसान दोबारा नहीं मिलते। तुम्हारा वालिद हमने खत आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। इसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। ईमान ने पहली बार इसकी आंखों में इतना दर्द देखा था। इसने आहिस्ता से देखा और पूछा, आप अपने वालिद को बहुत याद करते हैं? और हमने धीमी आवाज में जवाब दिया, हर दिन, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि वो कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। ईमान ने खामोशी से इसके पास बैठे हुए कहा, वो यकीनन बहुत खुश होंगे। और हमने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्यों? ईमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि इनकी दुआ पूरी हो गई है, आप अकेले नहीं रहिए। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। सुबह होने लगी, परिंदों की आवाजें आना शुरू हो गई। इस वक्त अरहम का फोन बजा था। इसने कॉल उठाई। चंद लम्हों बाद इसके चेहरे पर रंग बदल गया। दादा जान ने फौरन
पूछा क्या हुआ, और हमने संजय जी ने कहा लंदन वाली कंपनी ने मुझे फौरी मीटिंग के लिए बुलाया है, मुझे कल रवाना होना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। हमजा फौरन बोला, लेकिन आप तो अभी आए थे। दादा जान ने आयशा से कहा, कितने दिन के लिए, और हमने मुझसे इसका जवाब दिया, शायद 2 हफ्ते। ईमान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगी। पहली बार इसे महसूस हुआ कि किसी के जाने की खबर भी बिल्कुल इतने बेचैन कर सकती है। और हमने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और धीरे धीरे फैसला किया वो इस सफर से जल्द जल्द वापस आएगा, क्योंकि अभी से सिर्फ हवेली नहीं, कोई और भी घर पर इसका इंतजार करता था। अरहम की फ्लाइट अगली सुबह थी। पूरी घर में अजीब सी खामोशी थी। कोई इसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये सफर कारोबार के लिए जरूरी था। रात खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। सिर्फ ईमान बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। चांद आज भी वही था, मगर दिल पहले जैसा पुरसुकून नहीं था। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दिया। हम खामोशी से इसके पास आकर खड़ा हो गया। काफी देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर हमने ऐसे से पूछा, तुम नाराज हो? ईमान ने नफी में सर हिलाया। बस अच्छा नहीं लग रहा है। ये पहला मौका था जब इसने अपने दिल की बात बगैर छुपाए कही है। हमने पहली बार इसकी तरफ मुकम्मल रुख कर लिया। मैं वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सके वापिस आ जाऊंगा। ईमान ने उसका कहा, मैं इंतजार कर लूंगी। ये सिर्फ 4 लफ्ज थे, लेकिन अरहम के लिए इनकी कीमत दुनिया की हर कामयाबी से ज्यादा थी। अगली सुबह पूरा खानदान इसे रुखसत करने आया था। जान ने दुआ दी। अदल भी इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया। गाड़ी रवाना हो गई और हमने शीशे से बाहर देखा। ईमान पूरे दरवाजे के पास खड़ी थी। इसने कहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट, हाथ हिला दिया। गाड़ी नजर से ओझल हो गई। हवेली अचानक बहुत बड़ी और बहुत खामोश लगने लगी। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन ईमान को अरहम की भेजी हुई एक छोटी सी पार्सल मिली। इसने हैरानी से खोला। अंदर एक खूबसूरत डायरी थी। पहली सफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जब तक मैं वापस नहीं आता हर दिन की एक याद इसमें लिख देना, ताकि वापस आकर मैं तुम्हारे साथ वो दिन भी जी सकूं। ईमान बेहतर मुस्कुराई। इसलिए शाम लंदन में मीटिंग खत्म होने के बाद रकम होटल की खिड़की के पास खड़ा था। बारिश हो रही थी। इसने फोन उठाया। बेचैन लम्हे सोचकर ईमान को कॉल कर दी। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा गई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से ईमान की आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम, आप पहुंच गए? और हमने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन यहाँ सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। ईमान के दिल में खामोशी पे पूछा, क्या? और हमने आयशा से कहा, घर। और शायद घर अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा। कॉल की दूसरी तरफ सिर्फ मुकम्मल खामोशी थी, मगर इस खामोशी में दोनों के दिल एक दूसरे की बात समझ चुके थे। इस वक्त होटल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुलाजिम ने आकर कहा, सर, कल की मीटिंग मनसूख हो गई है। कंपनी ने तमाम मामला ऑनलाइन मुकम्मल कर दिए हैं। आप चाहे तो आज रात ही पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। और हमने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसका अगर कहा, अगली फ्लाइट बुक कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। हवेली की तमाम बत्तियां बुझ चुकी थी। सिर्फ मरकजी बरामदे की एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। ईमान को नींद नहीं आ रही थी। वो हस्बे मामूल बालकोनी में आकर खड़ी हो गई। हवा में हल्की ठंडक थी। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, पता नहीं वो इस वक्त जाग रहे होंगे या सो गए होंगे। इसी लम्हे हवेली के बड़े दरवाजे की बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ईमान ने हैरत से नीचे देखा। गाड़ी से रकम उतरा। इसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ रखा था। ईमान को एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया था कि इसने जल्दी से सीधा उतरना शुरू कर दिया। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसने सामने ईमान को खड़ा देखा। दोनों चंद लम्हे तक देखते रहे। फिर ईमान की आंखों में हैरत के साथ खुशी भी उतर आई। आप 2 हफ्ते बाद आने वाले थे? और हम हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कोशिश की, लेकिन वहां एक दिन भी दिल नहीं लगा। मीटिंग जल्द खत्म हो गई तो सोचा जिस जगह दिल हो वहीं वापस चला जाना चाहिए। ईमान कुछ बोलना सीखी। इसकी आंखों में नमी उतर गई। और हमने आयशा से कहा, तुमने कहा था तुम इंतजार कर लोगी, लेकिन मैंने सोचा इतना लंबा इंतजार क्यों करवाओ। इसी लम्हे दादा जान की आवाज आने लगी, हमारा मुसाफिर वापस आ गया। सब लोग जाग गए। हमजा दौड़ कर आराम से निपट गया। आपने कहा था 2 हफ्ते बाद। आपने झूठ बोला। हम पहली बार खुलकर हंसा, लेकिन अगर इस झूठ से सब खुश हैं तो शायद ये बुरा नहीं। और अगर खुशी से भर गया। सुबह नाश्ते की मेज पर दादा जान ने सबकी तरफ देखा, फिर बोले, आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। और ईमान, अब कंपनी की जिम्मेदारी है, तुम दोनों मिलकर संभालोगे, और साथ ही तुम दोनों की तालीम भी जारी रहेगी। ईमान हैरान रह गई। दादा जान, वाकई? दादा जान ने मुस्कुराकर कहा, इस घर की बहू सिर्फ घर नहीं संभालेगी, अपने ख्वाब भी पूरे करेगी। और हमने ईमान की तरफ देखा और वो आयशा से कहा कि मैंने वादा किया था तो तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। मैं अपना वादा नहीं भूलता। ईमान ने पहली बार सबके सामने दिल से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। अब ये सिर्फ एक तयशुदा शादी नहीं रही थी। ये एक लोग एक दूसरे के साथ बन चुके थे, जिन्होंने एक दूसरे
के ख्वाब को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके सजदुआ शब शुरू होने वाले। इस वक्त निरम धूप हवेली की सफेद संगमरमर पर बिखरी हुई थी। बाग में शबनम के कतरे फूलों पर चमक रहे थे। पूरी हवेली में एक अजीब सा सुकून था। वही हवेली से चंद माह पहले एक जबरदस्ती तय होने वाला रिश्ते सबके लिए सिर्फ एक खानदानी फैसला था। आज वही रिश्ता इस घर की सबसे बड़ी खुशी और नेमत बन चुका था। नाश्ते के बाद दजान ने सबको दीवार खाने में बुलाया। वो अपनी कुर्सी पर बैठी, इनके सामने एक लकड़ी पर पुराना संदूक रखा था। इन्होंने संदूक खोला, इसमें जमीन के कागजात, पुरानी कारोबारी फाइलें और खानदान की पुरानी दस्तावेजात मौजूद थी। दजान ने हम की देखा, आज से खानजादा ग्रुप की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखना, कारोबार सिर्फ पैसा कमाने से नहीं चलता, एतमाद से चलता है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, मोहब्बत से बनता है। हमने इतराम से सर झुका दिया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। फिर दादाजान ने ईमान की तरफ देखा। बेटी, तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन आज तुम इस खानदान की बेटी बन चुकी हो। ये सुनकर ईमान की आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर दादाजान के कदमों के पास बैठ गई। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों के दरमियान हमेशा यही मोहब्बत कायम रखे। 2 महीने बाद ईमान ने अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। सुबह वो यूनिवर्सिटी जाती, दोपहर में हवेली वापस आती और शाम को हम के साथ कंपनी के नए मंसूबों पर काम करती। हमने इसके लिए हवेली में खूबसूरत स्टडी रूम बनवा दिया, जहाँ किताबों की वो तमाम अलमारियां मौजूद थी, जहाँ जी देखकर ईमान की आंखें खुशी से चमक उठी थी। एक शाम दोनों बाग में बैठे थे, हवा में हल्की सी हनकी थी और हमने खामोशी तोड़ी। अगर इस दिन दादाजान ये रिश्ता तय न करते तो शायद मैं जिंदगी भर ये समझना ही नहीं पाता कि मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मुकम्मल कर देती है। ईमान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं ये कभी ना जान पाती कि खामोशी से लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत करते ना जानते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इसीलिए मैं हमजा दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, दादाजान आप दोनों को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं जल्दी आओ। दोनों अंदर आ गए। दादाजान के हाथ में एक तस्वीर थी जो आज ही खिंचवाई गई थी। पूरा खानदान एक साथ खड़ा था दरमियान में, और हम और ईमान। दादाजान ने तस्वीर देखते हुए कहा, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, इस बात का सबूत है कि मोहब्बत वक्त के साथ पैदा हो सकती है, और जब इतराम इसका साथ दे तो वो पूरी नस्लों की मीरास बन जाती है। चंद सालों बाद खानदान हवेली पहले से ज्यादा थी, कारोबार तरक्की कर चुका था। ईमान ने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी। वो खानदान की फलाही इदारे की सरबराह बन चुकी थी। हम आज पहले की तरह कम बोलता था, मगर अभी इसकी खामोशी में तन्हाई नहीं थी, क्योंकि हर खामोशी पहले लम्हे में ईमान इसके साथ मौजूद होती थी। एक शाम वो दोनों इसी पुराने झूले पर बैठे थे, जहाँ इनकी पहले हल्की गुफ्तगू हुई थी। हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी और हमने आहिस्ता से ईमान का हाथ थामा। मुस्कुराकर कहा, तुम जानती हो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन फैसला कौन सा किया? ईमान ने शाह से पूछा। दादाजान की बात मानना। और हम हंस पड़ा। तुम्हें अपना दिल देने में देर न करना। ईमान भी हंस दी और इसने अपना सर अरहम के कंधे पर रख दिया। दूर मस्जिद से मगरिब की अज़ान की आवाज गूंजने लगी। हवेली के दरवाजे बंद होने लगे। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़ की पीछे छुप रहा था। कुछ मोहब्बतें पहली नजर में नहीं होती, वो एहतराम से शुरू होती है, एतमाद में परवान चढ़ती है और वक्त के साथ ऐसी मीरास बन जाती है जो नस्लों तक सुनाई जाती है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।